अभी तक मैंने आपको इतने सेंटेंस बता दिए हैं 54 तक, राइट। अब इसके बाद आगे के कोई भी कुछ सेंटेंस हैं, लगभग आई थिंक इस लेक्चर में नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर में सारे सेंटेंस आ जाएंगे। ये सेंटेंस नहीं है एक्चुअल में, ये आपका जो प्रीपोजिशन है उनको यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ये आपको आना चाहिए, राइट ना। नाउ सी द 55th सेंटेंस। he succeeded third attempt. He succeeded dash third attempt. सोचिए क्या आएगा। He succeeded dash the third attempt. He scored poorly. He scored poorly dash first. He scored poorly dash his first attempt. सोचिए क्या आएगा, राइट। इसके बाद 57th, he comes here dash. He comes here dash. क्या मतलब है, क्या इसके अंदर आएगा। He comes here dash. ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट, he calls me dash. He calls me dash regular intervals. He calls me dash regular intervals. He calls me dash regular intervals. तो क्या आना चाहिए, सोचिए। नेक्स्ट, the train comes dash the platform. The train comes dash the platform. सोचिए क्या आएगा, राइट। नेक्स्ट, I saw him dash the theater. I saw him dash the theater. I saw him dash the theater. क्या आएगा। और 61 देखिए, I found him dash। दो सेंटेंस हैं, दोनों में अलग अलग लिखूंगा और आपको सोचना है क्यों अलग लिख रहा हूं। आई फाउंड हिम डैश द थिएटर। अब ये है सेंटेंसेस, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है 62nd, ही लिव्स डैश a country. He lives a country, a town, a street, a village, a room, a forest, a desert, or any place which has boundary.
मैंने अलग अलग सेंटेंस की जगह एक ही लिख दिया। ही लिव्स डैश ए कंट्री, ए टाउन, कोई स्ट्रीट, ए विलेज गांव, ए रूम, अ फॉरेस्ट, ए डेजर्ट रेगिस्तान और एनी प्लेस विच हैज़ बाउंड्री। क्या आना चाहिए, सोचिए। राइट, आई मेट हिम, I met him dash, I met him dash home, I met him dash works, I met him dash the office, I met him dash the university, I met him dash an address, I met him dash the bridge, I met him home, I met him works, I met him the office, I met him university, I met him an address, I met him the bridge। सोचिए इसके अंदर क्या आना चाहिए। ओके, 64th, he went home, he went home सही है कि गलत है? but he went to his house। यहाँ मैंने टू लगाया, यहाँ कुछ नहीं, सही है गलत है ये आपको सोचना है। ओके, अब आप इस चीज़ को आप इतना को करते हैं, फिर इसके बाद बाकी करेंगे। He went home, but he went to his house. I met him, home, works, the office, university, an address, the bridge. He lives a country, a town, a street, a village, a room, a forest, a desert. क्या आएगा? Right? I found him the theater. I saw him the theater. The train comes the platform. He calls me dash regular intervals. He comes here dash. He scored poorly his first attempt and he succeeded the third attempt. अब एक्चुअल में इसके अंदर क्या आएगा? Now listen. He succeeded the third attempt. He succeeded at the third attempt. He succeeded at the third attempt. इन नहीं है, क्यों? सोचिए। उसी प्रकार से he scored poorly dash his first attempt, पहले प्रयास में तो क्या होगा? He scored poorly at his first attempt। क्या हुआ? He scored poorly at his first attempt. Now he comes here dash, he comes here dash, मैंने क्या लिखा? He comes here at times, he comes here at times। क्या मतलब हुआ at times का? ये आपको समझ में आना चाहिए। He calls me dash regular intervals, he calls me dash regular intervals। यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? देखिए हर जगह at आ रहा है। He calls me at regular interval। यहाँ पर at का क्या सेंस है ये आप दिमाग लगाइए। The train comes the platform, the train comes the platform। क्या आएगा? The train comes at the platform। The point is at, not on। The train comes at the platform। on नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? ये आपको सोचना है। I saw him the theater। I saw him the theater। theater जो सिनेमा हॉल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ I saw him at the theater, तो इसका मतलब क्या है? I saw him at the theater, right? सोचिए। And next sentence है I found him the theater। I found him the theater। तो यहाँ मैं at की जगह यहाँ पे मैं in लिख रहा हूँ। सेम सेंटेंस है,
लेकिन एक जगह एट है, एक जगह इन है। अगर मैं लिखूं आई फाउंड हिम इन द थिएटर तो उसका क्या मतलब है, एंड आई सॉ हिम एट द थिएटर तो उसका क्या मतलब है। ओके, ये आप सोचिए। उसके बाद ही लिव्स, अ कंट्री, अ टाउन, अ स्ट्रीट, अ विलेज, अ रूम, अ फॉरेस्ट, अ डेजर्ट। तो यहाँ क्या आएगा, ही लिव्स in a country, in a town, in a street, in a village, in a room, in a forest, in a desert। क्यों, ये आप सोचिए। नेक्स्ट, आई मेट हिम होम, वर्क्स, द ऑफिस, द यूनिवर्सिटी एंड एड्रेस द ब्रिज। तो यहाँ लिख रहा हूँ आई मेट हिम एट होम, I met him at works. I met him at the office. I met him at the university, an address. I met him at particular address, 48 Tripoli Township. I met him at the bridge. तो यहाँ पे at क्यों लाया, क्या मतलब है, आपको सोचना है। और नेक्स्ट सेंटेंस है he went home but he went to his house। तो यहाँ पे went home में to नहीं लगा रहा हूँ, सही है, और यहाँ टू लगा रहा हूँ, ये आपको सीखना है। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 65, राइट। थोड़े से आगे बढ़ते हैं। ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग डैश मी, ही इज लुकिंग डैश मी। सोचिए इसके अंदर क्या आएगा। नंबर 66, ही एम्ड, he aimed his gun dash thief, thief, he thief, sorry, he aimed his gun the thief। सोचिए यहाँ पर क्या आना चाहिए। उसके बाद 67th, he came dash me, he came dash me, क्या आएगा सोचिए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, he is work, he is dash work। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, ही इज डैश वर्क। सोचिए। 69th, द बॉयज आर डैश प्ले, द बॉयज आर डैश प्ले, क्या होगा ये आपको सोचिए। द बॉयज आर डैश प्ले। 70 नंबर, he is good dash, he is good dash singing, he is good dash singing। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, he is good dash singing। सोचिए। He is good dash singing। Next, he sells rice, he sells rice dash he sells rice dash ₹70 per kg। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, he sells rice dash ₹70 per kg, राइट। नेक्स्ट,
I got these bets. I got these bets. I got these bets. Dash rupees 250. I got these bets. Dash rupees 250. तो इसके अंदर क्या आएगा? I got these bets rupees 250. यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए? तो मीनिंग सही निकल के आएगा. आना कौन सा चाहिए, फिर मीनिंग का सेंटेंस का सेंस भी सही होना चाहिए. और आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखना चाह रहे हैं. ही रैन डैश 40 किलोमीटर पर आवर. ही रैन डैश 40 किलोमीटर पर आवर. ही रैन डैश 40 किलोमीटर पर आवर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? सोचिए. 74th. He was his best. मैं डिफरेंट यूज सब एक साथ कर दे रहा हूँ. पूरा प्रीपोजिशन का बैकग्राउंड आपको समझ में आ जाएगा. He was dash his best. क्या आएगा? He was dash his best. 75. He was dash loss. He was dash loss. और एक है he was running dash loss. या ही का मतलब यहाँ पे his business was running dash loss. Right? Next है he is highly delighted. He is highly delighted dash success. He is highly delighted your success in the competition. He is highly delighted dash your success in the competition. Next 77 देखिए. I will do it at LEISURE leisure. I will do it dash leisure. क्या लिखा? I will do it dash leisure. क्या आना चाहिए? leisure का मतलब खाली समय. He is highly delighted dash your success in the competition. सोचिए इसके अंदर क्या आएगा? He was dash loss. और सेकेंड सेंटेंस है he was running, मतलब his business was running dash loss. He was dash his best. He was dash his best. सोचिए यहाँ पे क्या आना चाहिए? He ran dash 40 किलोमीटर पर आवर. He ran dash 40 किलोमीटर पर आवर. क्या आएगा? I got these bets dash rupees 250. क्या आना चाहिए? He sells rice dash rupees 70 per kg. He sells rice dash rupees 70 per kg. He is good dash singing. He is good dash
singing. The boys are dash play. The boys are dash play. क्या आएगा? He is work. He is work. क्या आएगा? He came dash me. क्या आएगा me? He came me. He aimed his gun. He aimed his gun dash the thief. He aimed his gun dash the thief. He is looking dash me. He is looking dash me. राइट? अब इसमें सोचिए हमें क्या क्या लेके आना है. पहला सेंटेंस, ही इज लुकिंग डैश मी. यहां मैं क्या लगा रहा हूं? ही इज लुकिंग एट मी. ही इज लुकिंग एट मी का मतलब क्या है और ही इज लुकिंग टू मी का मतलब क्या है? दोनों में क्या सेंस है? राइट? और ही इज लुकिंग टूवर्ड्स मी का क्या मतलब है? ये आपको इसमें समझ में आना चाहिए. ही एम्ड हिज गन डैश द थीफ. ही एम्ड हिज गन एट द थीफ. ही एम्ड हिज गन एट द थीफ. तो एट का मतलब क्या है? ही केम मी. ही केम एट मी का क्या मतलब है और ही केम टू मी का मतलब क्या है? हम दोनों आ सकता है, लेकिन दोनों मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा. ही केम एट मी और ही केम टू मी, दोनों में मीनिंग चेंज हो जाएगा. अब ही इज एट वर्क का क्या मतलब है और ही इज इन आर्मी का क्या मतलब है? ही इज एट वर्क क्या मतलब है और ही इज इन आर्मी का मतलब क्या है? सोचिए. द बॉयज आर प्ले. द बॉयज आर एट प्ले. क्या मतलब है इसका? द बॉयज आर एट प्ले. थिंक सीरियसली. ओके, नेक्स्ट है, ही इज गुड डैश सिंगिंग. ही इज गुड डैश सिंगिंग. ही इज गुड एट सिंगिंग. अगर मैं बोलूं ही इज गुड एट सिंगिंग, एट मैथ्स, तो इसका मतलब क्या होता है? आप इसको सोचिए. उसके बाद ही सेल्स राइस. ही सेल्स राइस ₹70 पर kg. ही सेल्स राइस at ₹70 per kg. He sells rice at ₹70 per kg. करेक्ट? सोचिए क्या मतलब है, क्यों ला रहे हैं हम एट? I got these bets ₹250. I got these bets ₹250. I got these bets at ₹250. I got these bets at ₹250. Okay, next, he ran dash 40 km per hour. He ran dash 40 km per hour. तो he ran dash की जगह पे he ran at 40 kilometers per hour. He ran at 40 kilometers per hour. क्यों आएगा at? He was his best. He was his best का हुआ he was at his best. When I say he was at his best, तो इसका मतलब क्या होता है? He was dash loss. He was dash loss. मैंने क्या किया? He was at loss. अगर मैं बोलूँ he was at loss, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आता है ये आपको समझ में आना चाहिए. और वहीं पे दूसरा सेंटेंस है ही वॉज रनिंग, मीन्स ही का मतलब यहाँ पे हिज बिजनेस वॉज रनिंग
इन लॉस, पहले में एट लॉस है, दूसरे में इन लॉस है। जब एट लॉस कहेंगे तो सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, और जब हम सेंटेंस के अंदर इन लॉस कहेंगे तो उस समय उसका क्या मीनिंग हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ही इज हाईली डिलाइटेड, ही इज हाईली डिलाइटेड dash your success in the competition. He is highly delighted dash your success in the competition. He is highly delighted at your success in the competition. क्या मतलब है? I will do it dash laser. I will do it dash laser. तो यहाँ मैंने कहा I will do it dash की जगह पे I will do it एट लीजर या एट लीजर टाइम। तो इसका यहाँ पे क्या मीनिंग हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, अब इसके बाद कुछ और सेंटेंस देखते हैं। शायद एक लेक्चर और लेना पड़ेगा इसमें, तब जाके फिर समझाना शुरू कर पाऊंगा। अब यहाँ पे है देयर इज अ रिवर डैश माई हाउस, देर इज अ रिवर माई हाउस डैश, यहाँ पे क्या आएगा सोचिए। ओके, देर इज अ रिवर डैश माई हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नोज मैनी अदर लैंग्वेजेस, ही नोज मैनी अदर, he knows many other languages, he knows many other languages dash English, he knows many other languages English. Next, he said dash me, he said dash me. सोचिए क्या होगा। नेक्स्ट, here is a temple, here is a temple dash no, here is a temple the garden city, here is a temple the garden city. अब यहाँ पे क्या आएगा सोचिए, पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे का चलो कुछ और ले लेते हैं सेंटेंस। ओके, $82 करते हैं, राइट, 3-4 और कर लेते हैं। He will reach here, he will reach here dash 9 o'clock, he will reach here dash 9 o'clock। क्या सेंस आता है, he will reach here dash 9 o'clock। नेक्स्ट है he will work here, he will work here dash 9 o'clock। दोनों में 9 o'clock है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस आएगा जो प्रीपोजिशन रखूंगा तब। नेक्स्ट है वी ट्रेवल डैश कार बस ट्रेन बाइक एट्सेट्रा। अब यहाँ पे क्या आएगा, वी ट्रेवल कार बस ट्रेन बाइक एट्सेट्रा। और 85th सेंटेंस अगर हो तो वी ट्रेवल
अब यहाँ पे ही अब मैंने कर दिया इन हिज कार, सॉरी हिज बाइक एटसेट्रा, तो यहां पे क्या आएगा? 86 देखिए, वी ट्रेवल डैश फूट, वी ट्रेवल डैश फूट, इतना करते हैं आज, राइट? वी ट्रेवल डैश फूट। इसके बाद राइट 86 तक हो गया, करेक्ट? वी ट्रेवल फूट, वी ट्रेवल हिज कार हिज बाइक एटसेट्रा, वी ट्रेवल कार बस बाइक ट्रेन एटसेट्रा, ही विल वर्क हियर 9 o'clock, ही विल रीच हियर 9 o'clock। क्या मतलब है? हियर इज अ टेम्पल डैश द गार्डन सिटी, ही सेड डैश मी, ही नोज मैनी लैंग्वेजेस डैश इंग्लिश, एंड नेक्स्ट है देर इज अ रिवर डैश माई हाउस। अब इसको अगर आप देखें, देर इज अ रिवर माई हाउस, देर इज अ रिवर beside my house, there is a river beside my house। सोचिए beside का क्या मतलब है? There is a river beside my house। Next, he knows many other languages, he knows many other languages English, क्या? he knows many other languages besides, यहाँ s आया, वहाँ s नहीं है, besides English, he knows many other languages besides English। थिंक बिसाइड्स का क्या लॉजिक इसके अंदर बन के आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, ही सेट मी, ही सेट बाई मी, या ही सेट बिसाइड मी, या ही सेट नियर मी। वो जो आएगा उसका मतलब क्या होगा? हियर इज अ टेम्पल डैश द गार्डन सिटी, हियर इज अ टेम्पल बाई द गार्डन सिटी। क्या मतलब है यहां पे? या हियर इज अ टेम्पल बिसाइड द गार्डन सिटी, इसका क्या मतलब निकल करके आता है? सोचिए। उसके बाद ही विल रीच हियर 9 o'clock। अगर मैं लिखता हूं ही विल रीच हियर बाई 9 o'clock, तो इसका क्या मतलब होता है? ही विल रीच हियर बाई 9 o'clock का क्या मतलब होता है? और अगर मैं बोलूं ही विल रीच हियर एट 9 o'clock, तो उसका क्या मतलब होता है? और नीचे वाले सेंटेंस में ही विल वर्क हियर टिल 9 o'clock, तो इसका मतलब क्या होता है? ही विल वर्क हियर टिल 9 o'clock। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट, वी ट्रेवल कार बस ट्रेन बाइक। अब मैंने लिखा वी ट्रेवल बाई कार बाई बस बाई ट्रेन, तो इसका क्या मतलब होता है? करेक्ट। और 85th है वी ट्रेवल हिज कार हिज बाइक, तो मैंने यहां किया वी ट्रेवल इन हिज कार, वी ट्रेवल ऑन हिज बाइक। अब इन ऑन यहां पे क्यों लगा रहे हैं, बाई नहीं लगा रहे हैं? तो इसका क्या सेंस होगा, क्या लॉजिक होगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट है वी ट्रेवल फूट, हम पैदल चलते हैं, तो वी ट्रेवल फूट। अब यहां लगा रहा हूं वी ट्रेवल ऑन फूट, बाई फुट नहीं बोला मैंने, वी ट्रेवल। कई बार लोग यहाँ बाई लगाते हैं, बात करेंगे बाद में, बाई गलत है।
वी ट्रैवल ऑन फुट, ये सब चीज़ें हुई। इसको आप सोचिए, पढ़िए और आगे के सेंटेंसेस नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।